Janvi, good evening. All right. Yeah, good evening, good evening. जानवी, कहाँ से आप? सब यहाँ All right, okay. Got it. ठीक है. Okay. So what we are doing now, we are starting with this chapter cell the unit of life. In this, what we'll be doing आज के class के अंदर, we'll be doing the prokaryotic cell. That is something we'll be focusing on. Now this chapter, usually what happens, you will get 2 questions from this chapter all the time. नीट के अंदर आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन के आ जाते हैं. Okay. And the objective over here is to have a brief understanding of prokaryotic cell. आज के क्लास में हम ये करेंगे that we'll try to understand what are my prokaryotic cell. We'll try to understand that, right? Now please understand the chapter will have a weightage of 8 marks. Along with that, this chapter creates a foundation. यहाँ पे आपका एक foundation create होता है जहाँ पे आप समझ पाओगे बाकी के chapters को भी. So इसलिए chapter आपके लिए काफी important हो जाता है. ठीक है? So let's start our story of a prokaryotic cell. Again एक बार फिर आप सबको बताना चाहूंगा, शिखा, जानवी एंड महालक्ष्मी, दैट इन केस अगर आपको लगता है कोई चीज समझ नहीं आ रही, प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो सो दैट आई कैन रिपीट दैट थिंग. ठीक है? बीच में इंटरप्ट कर दो, अनम्यूट करके, एंड जस्ट लेट मी नो. राइट नाउ व्हेन वी डिस्कस अ प्रोकैरियोटिक सेल, basically we are discussing something in terms of the bacteria, right? So bacteria becomes a very good example of my prokaryotic cell. उसके अलावा you also have a mycoplasm, but let's talk about bacteria right now. Okay, so इसके बारे में हम बात करते हैं. So you can see a picture of bacteria in front of you. You can see a flagella, pili, cytoplasm. You can see number of things inside the bacteria. Bacteria में आपको बहुत चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है. Membrane है, cell wall है, you have a nucleoid. Number of things are seen over there. So let's try to slowly understand what are these things and what they actually do. So what are these organelles and what kind of role they play. So let's try to see all those things slowly. ठीक है? चलिए एक काम करते हैं, इनको हम यहाँ पे हम समझते हैं. Now let me draw a bacteria for you. So assume that this is my bacteria. Now bacteria will have a cell wall. Bacteria is also going to have a cell wall. Please remember the bacteria are known to have a cell wall. Unlike animals, animals are known to have no wall, but bacteria will be having a cell wall. Bacteria, plants will have a cell wall. ठीक है? अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि आपकी जो सेल वॉल यहाँ पे है, जनरली प्लांट की सेल वॉल बनी होती है आपके सेलुलोज से, बट ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है. दिस इज अ सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया, राइट? सो इट इज मेड ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन. ट्रू, it is going to be made up of my, just wait a minute, पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है? ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है मेरे यहाँ पे सेल वॉल. दैट्स वन थिंग. उसके बाद और थोड़ी बात करते हैं. So we can see number of things are there inside the bacteria ना. So let's try to understand couple of things. Let's start with the mesosome. क्या है मेरा ये mesosome और ये करता क्या है? What is my mesosome and what it has been known for? So let's try to see this. So what will be happening here? Straight a minute. Now from the plasma membrane you will find the invagination will come out. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होके एक स्ट्रक्चर बाहर निकल के आएगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय मेसोसोम. ठीक है? याद रखना ये आपका, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय, द स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मेसोसोम. नाउ व्हाट दिस मेसोसोम इज नोन फॉर, करता क्या है ये, व्हाट इट इज बीन नोन फॉर. अगर हम मेसोसोम की बात करते हैं यहाँ पे, देन व्हाट विल बी हैपनिंग, इसके आपको रूल्स याद रखना है. Mesosome is known for cellular respiration. This is known for cellular respiration. Now please understand one thing very carefully. Inside our cells, हमारे cells के अंदर क्या है? We have a bacteria, we have a mitochondria. And mitochondria करता है हमारा cellular respiration. आपने 11 का पढ़ा होगा, mitochondria के अंदर आप कुछ चीजें सीखते हो, Krebs cycle, electron transport chain, ये सब आप सीख रहे होते हैं ना. mitochondria के अंदर ये सब आपका हो रहा होता है. So ये सारे इवेंट्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया में भी होंगे, बट बैक्टीरिया में कहाँ पे होंगे? They will be happening in the mesosomes, and it is forming from the extension of the plasma membrane. ठीक है? तो याद रखना, cellular respiration will be taking place inside the mesosome. That's the first thing you have to know. Second thing what you have to know is
It helps in DNA replication. मीजोसोम हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. तो अगर आपके बैक्टीरिया को डीएनए को रेप्लिकेट कराना है तो मीजोसोम उसकी वहां पे करेगा मदद. So mesosome is going to help you out during the DNA replication. That's the second thing you have to know. And then you have the third thing. Mesosome are also known for cell wall formation. They are also known for my cell wall formation. तो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये लोग एक बहुत ही जरूरी यहाँ पर रोल प्ले करते हैं. So that these are the three things you have to know. That mesosome is formed from the membrane, plasma membrane, and it has three rules in the bacteria. इसके तीन रूल आपको बैक्टीरिया में मिल जाएंगे. Respiration, DNA replication, and my cell wall formation. It's a very important 3 points you have to know क्योंकि इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, ये हमने देख लिया. अब बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, so obviously इसके पास एक DNA भी होगा. So let's make a DNA over here. So bacteria will have a DNA, and the DNA you have in the bacteria, इसको हम कहते हैं यहाँ पे as a genomic DNA. So आपको DNA मिल जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, and that DNA will be called as my genomic DNA. Genomic DNA. You can also call it as like a genomic chromosome as well, right? But you can also call it as a genomic DNA. अब जो आपके यहाँ पे जो genomic DNA आपका जो यहाँ पे है बैक्टीरिया के अंदर, this DNA is going to be circular and double stranded. तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो DNA आपको यहाँ पे हमने बना के दिखाया है, इसके बारे में 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे. That it is going to be double stranded. Is going to be double stranded. ये 2 स्ट्रैंड से बना हुआ आपको मिलेगा यहाँ पे. It will be double stranded. Second thing, it will be circular. तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA आपको मिलेगा यहाँ पे बैक्टीरिया में. ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए कैसा है, लीनियर है, पॉलीगोनल है, कैसा है. इट इज गोइंग टू बी सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. दिस जीनोमिक डीएनए हैज आल्सो वन मोर नेम. नाउ प्लीज रिमेंबर द डीएनए इज नॉट इन द न्यूक्लियस. यहाँ पे न्यूक्लियस होता नहीं है. बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया के पास आपको न्यूक्लियस देखने के लिए कभी भी यहाँ पे मिलेगा नहीं. ये डीएनए आपका साइटोप्लाज्म में वैसे ही फ्लोट करता रहेगा और इस जीनोमिक डीएनए को हम यहाँ पे नाम देंगे. यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ न्यूक्लियोइड. यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ nucleoid. Right, so this is again something should be clear to you. So nucleoid is a term I'll be using over here. So that's my DNA, and please remember one thing, जो चाहे वो DNA बैक्टीरिया का हो, हमारा हो या किसी वेल का हो, किसका भी हो, DNA का बेसिकली होता क्या, DNA में होते हैं जीन्स. DNA में लगे होते हैं कई सारे जीन्स, एंड दोस जीन्स आर टू मेक द प्रोटीन. ये जीन्स आपके लिए कुछ प्रोटीन आपको बना के देंगे. ये बात अभी आप दिमाग में बिठा लो बिकॉज 12th में तो आप डिटेल में समझोगे. बट देखना डीएनए इज गोइंग टू हैव अ जीन्स एंड जीन्स आर गोइंग टू मेक द प्रोटीन. सो बेसिकली प्रोटीन जो सिंथेसिस आपका हो रहा है वो डीएनए से आ रहा होता है. ओके, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो दैट्स माय डीएनए इन द बैक्टीरिया. इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड. इट्स अ नेकेड डीएनए. इट इज नॉट केप्ट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में ये आपका नहीं है, साइटोप्लाज्म में ही है. डबल स्ट्रैंडेड है. इट इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. Now, along with this DNA, you have one more DNA over here. इसके अलावा you also have one more type of DNA, and that DNA will be like small in size. तो आपको और भी कोई सर्कुलर DNA आपके यहाँ पे मिल जाते हैं जिनका साइज आपका काफी छोटा होता है, and those DNA are called as my plastid. They are called as my plasmid. Sorry, they are called as my plasmid. अगर मैं यहाँ पे प्लाज्मिड की बात करता हूँ, सो प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए. अगेन क्वाइट इज दे आर लाइक स्मॉल सर्कुलर डीएनए, एंड उनका नंबर कितना रहता है, देयर नंबर इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम लाइक 2 से लेके 10 जितने हो सकते हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर. तो नंबर इनका काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाएगा. इट्स नॉट लाइक कि 1-2 ही होते हैं, नॉर्मली 2 से 10 और कई बार उससे ज्यादा भी हो सकता है. सो याद रखना, अ बैक्टीरिया विल हैव वन मोर टाइप ऑफ डीएनए एंड इट्स अ स्मॉल वन. इट्स अ क्वाइट स्मॉल वन, राइट. So याद रखना, plasmid is going to be a small circular DNA. So we'll have a plasmid, and this plasmid is going to be a small circular DNA. Again, it will be small, as you can see, and this is going to be also going to be a double-stranded. DS लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, double-stranded circular DNA. Circular. This is also going to be a circular DNA. So that is also something you should all remember. Again, some of the important points. Right, now you have this plasmid over here, which is a small double stranded circular DNA,
and this DNA will be like in a few numbers. 2 से 10 जितने नंबर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए. You can see over here, you can see the picture. We have seen few things, right? We have seen the mesosome यहाँ पे. We have seen the nucleoid, which is your normal DNA, genomic DNA, and then you have a plasmid. Plasmid can be multiples in number, right? Now this plasmid is a smaller DNA. It will have few number of genes. Simple सी बात है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यार genomic DNA काफी बड़ा है मेरा यहाँ पे, plasmid मेरा यहाँ पे काफी छोटा है. तो genomic DNA के अंदर आपके number of genes ज्यादा होंगे. You will have more number of genes, and plasmid will have few number of genes, right? Now let's understand what this plasmid is going to have. Plasmid में किस टाइप के genes मिलते हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं. तो आपका जो plasmid यहाँ पे है, the plasmid you have, plasmid is known to have some special type of genes, और उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, रेजिस्टेंट जीन. Now let's understand this term. What is that particular gene? What kind of genes you have? Genes. तो याद रखना कि आपके प्लाज्मिड के अंदर you will get to have antibiotic resistant genes आपको वहां पे मिल जाएंगे. अब इनका फायदा यहाँ पे क्या होता है? What kind of advantage you have over here? ये जीन करते क्या है? तो एक बात याद रखना कि अगर कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमेशा हैप्पीली रह सकता है अपनी लाइफ के अंदर, बट अगर उस बैक्टीरिया को आप रखते हो किसी ऐसे सॉल्यूशन में जो उसके लिए हार्मफुल हो, तो एक बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हमेशा इज गोइंग टू बी द एंटीबायोटिक सॉल्यूशन. एंटीबायोटिक सॉल्यूशन आपके बैक्टीरिया के लिए हमेशा हार्मफुल रहता है. ये बात हमेशा आप यहाँ पे याद रखना. जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है? डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का डोज देता है. क्यों देता है? ताकि वो बैक्टीरिया को खत्म कर सके, राइट? So what will be happening here ना, that you have this antibiotic which is going to be a harmful thing for bacteria. बैक्टीरिया को ये पसंद नहीं है. बैक्टीरिया बेसिकली सर्वाइव नहीं करेगा एंटीबायोटिक के अंदर, राइट? अब होता क्या है कि ये जो जीन होता है, अगर किसी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड अगर आपके है यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो आपका बैक्टीरिया काफी इजीली सर्वाइव कर सकता है एंटीबायोटिक सॉल्यूशन के अंदर. आप कितना भी उसके ऊपर एंटीबायोटिक डाल दो, वो मरेगा ही नहीं, वहां पे जिंदा रहेगा. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. समझो यहाँ पे एक मैं प्लाज्मिड बनाता हूँ. लेट मी मेक अ प्लाज्मिड ओवर हियर, राइट? लेट मी मेक अ स्मॉल प्लाज्मिड. इट इज माय डबल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल डबल सर्कुलर डीएनए. ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है? अब ये मेरा प्लाज्मिड है और इमेजिन करो कि इस प्लाज्मिड के ऊपर मैंने यहाँ पे कोई जीन लगा हुआ है. यहाँ पे मेरा एक जीन लगा हुआ है और इस जीन का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन, ये है मेरा यहाँ पे जीन का नाम, ठीक है? तो टेट्रासाइक्लिन जीन का नाम मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. ये जो मेरा यहाँ पे जीन है टेट्रासाइक्लिन वाला, ये जीन अगर मेरा इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, तो मेरा बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन में आराम से सर्वाइव कर पाएगा. मेरे बैक्टीरिया के ऊपर अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन वाला एंटीबायोटिक डाला, तो वो आराम से वहां पे रह पाएगा. उसकी डेथ वहां पे नहीं होगी, बल्कि वहां पे ग्रो भी करेगा. अब वो ऐसा क्यों कर पा रहा है? कि उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा? बिकॉज इट हैज अ जीन ओवर देयर. समझो इस बात को. तो इसलिए ये जो जीन्स होते हैं ये आपको मिलेंगे प्लाज्मिड के ऊपर, और इनका भी एडवांटेज होता है, इनका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज दे एक्चुअली अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड सर्वाइव इन दोज कंडीशंस व्हिच आर जनरली हार्मफुल. वहां पे वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है? तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. क्या प्लीज बता देना अगर कोई चीज समझ. हाँ तो बोल देना. जितेंद्र बेटा आपका नाम क्या है? Oh, that's it. That's her name. Janvi. Okay. Janvi coming from a new ID. All right. So this is what you have to know. So plasmid is something which will be having this gene, and this is the advantage you will get to have, right? So that is something should be clear to you. Okay. So ये एक term आपको यहाँ पे याद रखना है. It's a small double circular DNA, and this it has been known for, right? It is also used for the transformation के लिए, but that is something you can ignore right now. So ये हमने यहाँ पे देख लिया. ये चीज हमने यहाँ पे देख ली. Now let's see some more things. Now when you discuss a bacteria na, so bacteria are going to have like some structures on the outer side. So बाहर क्या क्या मिलता है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे. So assume that कि मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया है. Let's quickly draw bacteria, and बैक्टीरिया के outer side पे we'll find some outgrowth. Some small outgrowth can be seen. Some small outgrowth can be seen outside the wall of the bacteria. अब ये जो आपको आउटग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, दिस आउटग्रोथ आर कॉल्ड एज माय फिमरिए.
ये जो आउटग्रोथ मैंने आपके यहाँ पे बना के रखी है, दिस आउटग्रोथ ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फिम्ब्रिया. नाउ फिम्ब्रिया इज समथिंग which does not help in locomotion. याद रखना, फिम्ब्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं होता लोकोमोशन को लेके. ये कोई तैरने में मदद नहीं करते. दे आर नॉट यूजफुल फॉर स्विमिंग, राइट. कई बार हमें क्या लगता है कि हमें लगता है कि ये सीलिया है और ये तैरने में मदद करता होगा. ऐसा कुछ नहीं है. फिम्ब्रिया इज समथिंग विच इज सीन इन द बैक्टीरिया एंड दे हैव नो रोल टू बी प्लेड इन द स्विमिंग. तो ये करते क्या है? फिम्ब्रिया बेसिकली हेल्प करता है बैक्टीरिया को किसी के जगह से साथ अटैच करने में. सो फिम्ब्रिया बेसिकली मेरे यहाँ पे हेल्प करेगा कि बैक्टीरिया किसी चीज को जाके चिपक सके. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुमने बाहर जाके कुछ खा लिया, चाउमीन खा लिया, तुम लोगों ने जाके रोड पे जाके चाउमीन खा लिया. आपके टीचर ने मना किया था, तभी तुमने जाके रोड पे जाके तुमने चाउमीन खाया, राइट. अब तुम्हारे पेट में चाउमीन तो गया ही गया, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया भी चले गए, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन? अगर बैक्टीरिया तुम्हारे पेट में गया तो बैक्टीरिया तो चाहेगा कि वो तुम्हारे पेट में रहे. वो तो हैप्पीली चाहता ही था वो कि वो उसे जगह मिले वहां पे रहने के लिए, राइट. सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, द बैक्टीरिया विल होल्ड ऑन टू योर वॉल. वो जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा? इट विल ट्राई टू होल्ड ऑन टू योर इंटेस्टाइन. वो इंटेस्टाइन को वहां पे पकड़ के रखेगा, ठीक है. और अगर वो वहां पे वो इंटेस्टाइन को पकड़ के रख रहा है तो उसे पकड़ने के लिए फिम्ब्रिया हेल्प करेगा. तो ये बात याद रखना कि फिम्ब्रिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस एक्चुअली हेल्प्स द बैक्टीरिया. इट हेल्प्स इन attachment to substratum. इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया को अगर किसी चीज को पकड़ के रखना है ना, समझो वो आपके बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन हो या फिर पानी में पत्थर हो या पानी में सॉइल हो या किसी भी चीज को अगर उसे पकड़ के रखना है, तो पकड़ के रखने के लिए आपका फिम्ब्रिया यहाँ पे यूज किया जाएगा. सो फिम्ब्रिया इज बेसिकली यूज टू अटैच इटसेल्फ टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है. तो ये बात रखना कि फिम्ब्रिया का काम यहाँ पे ये होता है. इसका काम और कोई नहीं है, बस ये इसका काम है. फिम्ब्रिया के साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट टू सी सम इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स. आपको कई बार यहाँ पे दिख जाएंगे, 2-3 बड़े बड़े ऐसे लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे आपके वॉल के ऊपर लगे हुए, राइट. ये ज्यादा नहीं होता, ये 2-3 होते हैं. फिम्ब्रिया तो लाइक आपके थाउजेंड्स ऑफ फिम्ब्रिया यू कैन हैव ऑन द बॉडी सरफेस, बट ये जो मैं ऑरेंज करके स्ट्रक्चर बनाया ये ज्यादा नहीं होते, ये 2-3 ही आपको मिलेंगे आपके बॉडी सरफेस के ऊपर. नाउ दीस स्ट्रक्चर व्हिच आई हैव ड्रॉन, दे आर कॉल्ड एज माय पिलाई. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पिलाई. अब पिलाई आपको यहाँ पे क्या करता है? पिलाई जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आप जो आपका है यहाँ पे ऑन द वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से कनेक्ट करने में मदद करता है. This pili actually helps in connecting two different bacteria. So you have like two bacteria which can get themselves attached to each other. वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे चिपक सकते हैं with the help of the pili. क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार उन्हें चिपकना ही क्यों है? Why they have to attach to itself? वो भी हम देख लेते हैं. तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपका 2 बैक्टीरिया, लेट्स से you have like 2 bacteria in front of you. ये एक मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे खड़ा है, राइट. एक और बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे खड़ा है. दोनों बैक्टीरिया काफी पास में आ चुके हैं. नाउ दे हैव टू फॉर्म अ कनेक्शन. इनको एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फॉर्म करना है. वो कनेक्शन फॉर्म करने के लिए आपका पिलाई यहाँ पे यूज किया जाता है. सो पिलाई बेसिकली हेल्प्स टू फॉर्म अ कनेक्शन, और उस कनेक्शन से दोनों बैक्टीरिया यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं. बोथ द बैक्टीरिया कैन कनेक्ट देमसेल्फ विद ईच अदर. ये जो कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ब्रिज. कॉल हिम एज अ कॉन्जुगेशन ब्रिज. और इसको ब्रिज बनाने के बाद, अगर ब्रिज बनाया है तो कुछ ट्रांसफर करेंगे हम लोग यहाँ पे. ये ब्रिज बनाने के बाद बेसिकली वो लोग अपना डीएनए एक्सचेंज करते हैं, थोड़ा थोड़ा डीएनए यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं. इसको हमें डिटेल में समझना नहीं है कि डीएनए एक्सचेंज कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट याद रखना दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन ओवर हियर. और ये सब करने के लिए आपका जो यहाँ पे हेल्प करता है दैट इज माय पिलाई. सो पिलाई की मदद से ही आपका यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रिज बनेगा. यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन ब्रिज आपके यहाँ पे बनेगा, right, and you will find this will be they are going to exchange the DNA over here. Okay, so that is something you have to know. So pili का रोल याद रखना, फिम्ब्रिया का रोल यहाँ पे याद रखना. So these are the 2 things you have to be very clear with. Then you have the flagella. Then you will have the flagella, and this flagella is known for the swimming purposes. So flagella का basically यहाँ पे ज़्यादा कोई काम नहीं होता. It will have a main role of swimming over here. तो ये वो स्ट्रक्चर बेसिकली आप यहाँ पे जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया स्विम कर पाता है, राइट. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो.
right? So just wait a minute, people. Sorry for the interruption. Just wait a minute. Just wait a minute. I'm just trying to fix few things. Someone has a question. बताइए, महालक्ष्मी बताइए. सर ये दोनों बैक्टीरिया मतलब अटैच होंगे ना सर? हाँ, बिल्कुल. होने के बाद क्या होगा सर? होने के बाद वो लोग अपने यहाँ पे डीएनए एक्सचेंज करेंगे. They're going to exchange DNA over here, right? Just let me show you. यहाँ पे आपका डीएनए जो होगा ना, उसका एक स्मॉल फ्रेगमेंट आपका यहाँ से यहाँ पे जाएगा. ठीक है, सो दैट्स समथिंग विल गेट टू सी. डीएनए का एक स्मॉल फ्रेगमेंट आपका यहाँ से यहाँ पे जाएगा. ओके, सिमिलरली यहाँ से भी आपका एक डीएनए का एक स्मॉल फ्रेगमेंट विल हैव अ स्मॉल फ्रेगमेंट will go from this side to this side. Just give me a minute. Just wait a second, people. Just wait a second. Just give me a minute. Right, there was a small issue which has been resolved. ठीक है, I'll just come back over here. Alright, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, right? And flagella is something which will be used for the swimming purposes. So flagella is something which will be used for the swimming purposes, right? So that is something you have to understand. Then you have the ribosomes. Now you have the ribosomes over here. So we have seen the flagella, pilus, femore. We have seen this. We have seen the mesosomes. We have seen the plasmid. Now let's talk about my over here ribosomes. Now the bacteria are going to have the ribosomes. Bacteria are going to have the ribosomes. And ribosomes जो मिलते हैं यहाँ पे, एक बात याद रखना कि ribosomes का काम common रहेगा. Ribosomes will have a very common role in bacteria and in us also. They are mainly known for the protein synthesis. Bacteria are well known for the protein synthesis. They're well known for my protein synthesis. Okay, that is something they have been well known for. They are like well defined, well known for my protein synthesis. That should be clear to you. Okay, whether it is a bacteria or whether it's a human cell, इनका एक ही काम होता है, प्रोटीन बनाने में ये आपके यहाँ पे मदद करते हैं, right? The second thing what you have to understand here is that ribosomes are the one in which you will have a larger unit and you will have a smaller unit. So you'll have a larger unit and you'll have a smaller unit. The larger unit is going to be called as my 50s. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a 50s और smaller unit को हम बोलते हैं यहाँ पे as a 30s. और पूरे राइबोसोम को हम एक जनरली बोल लेते हैं यहाँ पे as a 70s राइबोसोम्स. तो आपके सामने ये सवाल आ सकता है कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में आपको राइबोसोम कैसे मिलते हैं? Then the answer is going to be 70s ribosomes. ये आप already you must be knowing this, that 70s ribosomes are the ribosomes you find in the प्रोकैरियोटिक सेल. अगर एक यूकैरियोटिक सेल आपका, हाँ जी, अगर एक यूकैरियोटिक सेल होता तो उसमें आपको मिलते 80s राइबोसोम्स, राइट? बट इसमें मिलते 70s. अब नीचे अगर आप एक यहाँ पे पिक्चर देखोगे, सो व्हाट द पिक्चर इज बीन शोन ओवर हियर ना, ये है mRNA और उसके आसपास यू विल गेट टू सी ओवर हियर प्रेजेंस ऑफ योर राइबोसोम्स. लाइक राइबोसोम्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, राइट? राइबोसोम उसके ऊपर आके यहाँ पे बैठ चुके हैं. तो बेसिकली mRNA उनके बीच में से पास हो रहा है, उसके ऊपर कई सारे राइबोसोम लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 पांचवा राइबोसोम एक RNA के ऊपर बैठे हुए हैं, राइट? अगर आपको ऐसा पिक्चर दिखता है, you can find such picture in the bacteria that a mRNA, you have a mRNA over here, this is mRNA, this strand is a mRNA, right?
and on that mRNA you have like multiple ribosomes sitting. If you get to see such kind of picture na, please understand this picture over here is called as my polysomes. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a polysomes. Okay, so this should be clear to you. This structure over here is called as my polysomes. Now polysomes करते क्या है क्या ये? So एक बात समझ लो यहाँ पे कि अगर आपका एक सिंगल mRNA है, अगर उसके ऊपर कई सारे ribosomes बैठे हुए हैं, so they are going to make a large amount of protein. अगर आपको polysomes नाम का स्ट्रक्चर ऐसा दिख जाता है, so याद रखना they are going to make high amount of protein. ये लोग काफी high amount में आपका protein यहाँ पे बनाएंगे. So they are going to make a very high amount of protein. So this is also one thing you should be all clear with, right? It is going to make a very high amount of protein, right? So polysomes नाम याद रखना. Polysome में basically आपको क्या मिलेगा? A single mRNA will have multiple ribosomes. A single mRNA will have multiple ribosomes sitting on it, and that condition is called as my polysomes, and that will make a good amount of protein. That should be clear. Okay? So that's why ribosomes over here. Now let's see over here what has been shown. So what will happen now? You have some bacteria which are known to carry out photosynthesis. Like you have something like a cyanobacteria, right? So you have a cyanobacteria which is known to carry out photosynthesis. Now such bacteria don't have chloroplast. याद रखना इनके पास chloroplast नहीं होता. They are not supposed to have a chloroplast. ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं इनके पास कुछ और होता है. They have something like a chromatophore. So chromatophore is also, you can see that ये आपका membrane से ही निकल के आ रहा है. It is an extension of the membrane. So you will have a chromatophore. You will have a chromatophore, and it is an extension of the membrane. It is going to be a extension of membrane. The extension of membrane. Now what actually happens here now? This chromatophore, which is an extension of membrane, is known to have presence of photosynthetic pigment. It is known to have presence of photosynthetic pigments. इसके अंदर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको मिल जाते हैं और इनकी मदद से आप अपना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आप कर पाते हो. Because of that you are able to carry out the photosynthesis. So because of that you will be able to carry out the photosynthesis. Some issues on my end. I know you are finding it difficult to read this, but just wait a minute. So एक ही चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपका फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपके यहाँ पे पिगमेंट्स आपको मिलते हैं. You will get to have these pigments over here, and these pigments over here are going to be present in the chromatophores. ठीक है? And that is what they have been known for. कोई भी चीज समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना, right? Please ask if there is something you don't understand. ठीक है? Yes, sir. So that's my cyanobacteria, and that's the story of them. और याद रखना, it's not only cyanobacteria. All the bacteria which can carry out photosynthesis are known to have this kind of arrangement. वो आपको ये arrangement आपको उसके अंदर मिल जाएगा, right? Now we have to solve some question. You have to raise your hand to answer this. Which of the following structure is not found in a prokaryotic cell? And raise करिए या फिर मैं आपको directly पकड़ूंगा फिर नहीं तो. Shreya Singh is using some kind of a. Shreya Singh, are you there in the class? New student. Okay. Tell us, Janvi, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option C. जानवी यहाँ पे कह रहे ऑप्शन सी. और राइट. महालक्ष्मी, आपको क्या लग रहा है? Yes, sir, option C. एंड शिखा, आपको? Sir, option C. Option C is the correct answer. बिल्कुल सही. You have a nuclear envelope, which is something which will be not seen in the prokaryotic cell. Rest other things can be very easily seen. Then, the structure that helps some bacteria to attach to a rock or a host tissue. इसका आंसर देंगे हमें यहाँ पे. सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं यहाँ पे. लेट्स से शिखा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, fimbriae. राइट. You are telling me. महालक्ष्मी, आपको क्या लग रहा है? Same, sir, fimbriae. Malakshmi, I have one more question on this. Tell me, where do I get to see hold fast? What's that? Where do I The get? flagella.
होल्ड फास्ट मुझे टर्म मैंने कहाँ पढ़ा था? एनीवन कैन टेल मी? Sir, हाँ, it is a part of flagella. Yes, sir. it is a part of flagella. No, sir. Not Sir, flagella, sir. There will be three parts, no, sir. Hold fast, seta, कैप्सूल? and capsule, yes, sir. नहीं नहीं, वो फुट, सीटा और कैप्सूल होता है. होल्ड फास्ट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द ब्राउन एल्गे. याद करो ब्राउन एल्गे में आपका होता था yes, sir. Yes, sir. राइट. यू हैव अ फ्रॉन्ड, यू हैव अ स्टाइप एंड यू हैव अ होल्ड फास्ट. ब्राउन एल्गे के अंदर होता था. बाकी बात है, आप लोग सबका आंसर यहाँ पे सही है. फिम्ब्रे इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. दैट्स राइट. ठीक है. देन रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन रेज योर हैंड. जानवी चलो आप बता दो. Something wrong with this. जानवी, you are telling me option B या D? क्या कह रहे हो आप? जानवी is thinking again. अरे it's going to be option. बताओ कौन बता? Option sir. D. D. Option D. वो B और D आप लोग का समझ लिया मुझे. Yes, it's going to be our option D. Lysosomes are the one which are going to function as similar to the mitochondria. They are known for the cellular respiration. They also do number of couple of things, cell DNA replication and cell wall formation as well. राइट. ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है आपके यहाँ पे. चलिए मैं भी इसका आंसर देता हूँ. मैं करूंगा ऑप्शन डी. आप लोग बताइए आपका क्या आंसर आएगा. टेल अस शिखा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. शिखा इज सेइंग ऑप्शन बी. शिखा, यू हैव टू टेल मी कि क्रोमैटोफोर्स बनता कहाँ से है? इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. एक्सटेंशन ये कहाँ से हो रहा है? Extension of flagella. प्लाज्मा Membrane. मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन Membrane. दूर आ गया. हाँ, इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ अ मेम्ब्रेन. दैट मींस इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, अगर ये मेरी यहाँ पे मेम्ब्रेन है तो इसमें से वो बन के निकल रहा है. इट इज एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम द मेम्ब्रेन ओवर हियर. इट इज कमिंग आउट लाइक दिस. दैट्स व्हाई वी से इट्स एक्सटेंशन ऑफ अ मेम्ब्रेन. ओके, ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. राइट, चलो. This is a picture you already know. Now we have few more things over here, like we have some inclusion bodies. Just give me a minute. So when we discuss inclusion bodies, so you have to know a few things in this. Like inside the bacteria, within the cytoplasm, आपको कुछ वैसे वेसिकल मिल जाएंगे. आपको साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में आपको कुछ ऐसे वेसिकल्स आपको देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. And these vesicles are called as my inclusion bodies. और इसके अंदर आप करके रखते हो stored food. You are going to keep the stored food over here. So over here we are going to keep number of stored food are being kept. So I will find some glucose molecule can be kept, or something other phosphate molecules can be kept. Something can be kept over here. So these are my inclusion bodies. So reserve material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in a form of my inclusion bodies. These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. ये आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली आपके यहाँ पे रखी हुई आपको यहाँ पे मिल जाती है. इनके एग्जांपल यहाँ पे क्या है? एग्जांपल कैन बी माय phosphate granules, Sanoficin granules and glycogen granules. So these granules are nothing but some vesicles. कुछ ऐसे small vesicles आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आप अपना खाना स्टोर करके रखते हो. This is something done by the bacteria. तो ये एक बात आपको याद रखनी है. आपको मैं पिक्चर में यहाँ पे दिखा सकता हूँ. In the picture you can see these inclusion bodies can be seen. ये देखो यहाँ पे जो फूड ग्रैन्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, these are my inclusion bodies. ये आपको बैक्टीरिया में आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है. दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द सेल वॉल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ द सेल वॉल एंड व्हाट यू गेट टू सी इन द सेल वॉल. राइट, चलिए. तो पहले मैं यहाँ पे बैक्टीरिया बनाता हूँ एक बार फिर. वन मोर बैक्टीरिया. जब तक मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, कुछ सवाल पूछना हो तो आप पूछ लो. दिस समथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क until I complete. मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं पूछना. ओके. Do we have any other student along other than Mahalakshmi, Shikha and Janvi? कोई और है हमारे साथ? श्रेया was there ना, I guess. श्रेया का क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? She's not there. Okay. All right. So you have this. We have just made this bacteria over here. So outer wall is always going to be a cell wall. This is always going to be a cell wall.
right? The green one is my plasma membrane. The green one is your plasma membrane. ये दो चीजें तो आप जानते हो. You know these two things have been seen in the bacteria. Now there's one more thing can be seen in the bacteria. एक और चीज आपको यहाँ पे मिल सकती है, and that one more thing is something which either you will find in the bacteria or something you won't even find in the bacteria. So additionally यहाँ पे एक चीज जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, वो कई बार बैक्टीरिया में होती है और कई बार उसमें वो बैक्टीरिया में आपको मिलेगी भी नहीं. So that is something going to be called as my glycocalyx. तो आपका सेल वॉल के बाहर एक और आपको यहाँ पे कवरिंग मिल सकती है कई बार बैक्टीरिया के अंदर, and that covering over here जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ zigzag is going to be called as my glycocalyx. ठीक है, this is my glycocalyx. अब glycocalyx के साथ यहाँ पे बात ये है कि glycocalyx is the like a outermost covering over here, right? Then you have the cell wall and then you have the plasma membrane. Now when you find these three covering in a bacteria ना, इसके लिए हम एक common term यहाँ पे use करते हैं, and that term is called as my cell envelope. When I get to see these three things surrounding the bacteria, that over here I'll use a term for that, and that is called as my cell envelope. So cell envelope is a term I'll be using for these three things, right? अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, ग्लाइकोकैलिक्स आपके बैक्टीरिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर्वाइव करने के लिए. अगर ये मिल जाए तो मिल जाए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें होता है, कुछ में आपको ये मिलेगा नहीं, तो ये एसेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए. ये बात रखना, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया. सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इट इज नॉट गोइंग टू बी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, सो ये बात याद रखना अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स. Now let's see what is this glycocalyx is actually going to be. So याद रखना, cell envelope will have three things we have discussed. We have a glycocalyx, we have a cell wall, and we have a plasma membrane. Now let's discuss glycocalyx in detail. Glycocalyx के दो फॉर्म होते हैं. इसके आपके दो फॉर्म आपको मिल जाएंगे. एक होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैप्सूल. एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कैप्सूल, और जो दूसरा फॉर्म आपका होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्लाइम. Slime layer. Right. Now, when we see this capsule and slime, now you get to realize that capsule में क्या होता है. So first of all, you have to know ये जो outer covering आपकी है glycocalyx की, it is made up of my polysaccharides. Mainly, it is made up of my polysaccharides. So glycocalyx के जो आपकी outer layer आपकी यहाँ पे होती है, basically अगर आपसे कोई पूछेगा किससे बनी हुई होती है, then you have to tell them it is something made up of your polysaccharide. ठीक है, ये polysaccharide से बनी हुई आपकी है लेयर होती है. Polysaccharide plus some glycoprotein. अब ये जो लेयर आपकी बाहर से बना के रखी है हम लोगों ने, दैट लेयर इधर कैन बी थिक एंड स्ट्रॉन्ग और कैन बी वेरी लूजली अटैच्ड. अगर ये आपकी जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, अगर वो काफी थिक है, अगर वो थिक है और काफी स्ट्रॉन्ग है, देन दैट इज कॉल्ड एज माय कैप्सूल. तो कैप्सूल जो टर्म आपको यहाँ पे दिखेगा, कैप्सूल जो टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, that means your glycocalyx is going to be thick. It will be quite thick and strong. ठीक है, so that is something we'll get to see in the capsule. अगर मैं slime की बात करता हूँ तो slime it will be like loosely placed. It will be loosely placed, loosely attached. तो ये आपकी thick भी नहीं होती, एकदम loosely attached होती है आपके सेल वॉल के साथ. तो याद रखना, कैप्सूल और स्लाइम आपको दो अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं यहाँ पे. अगर थिक हुआ तो कैप्सूल, अगर थिक नहीं हुआ तो आपका होगा ये स्लाइम. एंड इट इज मेड अप ऑफ माय पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. दैट इज शुड बी क्लियर टू यू. देन यू हैव द सेल वॉल, उसको हम बाद में आराम से देखते हैं, बट ग्लाइकोकैलिक्स आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. नाउ इसका रोल क्या होता है, मैंने आपको पहले बोला था ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सर्वाइवल के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके कुछ सेकेंडरी रोल्स होते हैं. सो लेट्स सी दैट. ये हमने देख लिया यहाँ पे, कैप्सूल एंड स्लाइम पॉलीसैकेराइड से बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाता है, made up and glycoprotein, not essential for the survival of the bacteria, but have several secondary functions. कुछ इसके secondary functions होते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं. Secondary function यहाँ पे क्या है? Prevention of desiccation. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो बैक्टीरिया है वो कभी आपका ड्राई नहीं होगा. अगर आपका ग्लाइकोकैलिक्स का कवरिंग आसपास है तो वो कभी भी आपका लाइक ड्राई आउट नहीं होता. It will have some amount of moisture surrounding itself. तो ये डेसिकेट होने से बचाता है, ये बैक्टीरिया को डेसिकेट होने से यहाँ पे बचाएगा.
दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो कि डेसिकेट होने से आपको यहाँ पे ये बचाता है। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, इट गिव्स यू द प्रोटेक्शन फ्रॉम द ड्रग्स। ड्रग्स से भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। नाउ ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 1, ये आएगा मेरे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2। प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रग्स का मतलब मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर है, अगर आप उसे मारने के लिए ड्रग्स ले रहे हो तो कई बार वो ड्रग्स उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो बैक्टीरिया के पास यू हैव अ कवरिंग ऑफ अ ग्लाइकोकैलिक्स, तो वो ड्रग्स उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस। यहाँ से चलूंगा थर्ड पॉइंट और यहाँ पे खत्म होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस, आपके जो बैक्टीरियाज हैं। हाँ जी बेटा बताइए बताइए, महालक्ष्मी बोलिए। सर अभी आपने बोला कि वो प्रोटेक्शन के लिए मतलब वो क्या बोला ना सर, ग्लाइको समथिंग बोला ना सर। ग्लाइकोकैलिक्स, हाँ हाँ सर, अभी वो मतलब कैप्सूल में थिक होगा सर और स्ट्रॉन्ग होगा, वो अंदर नहीं जा सकता, और स्लाइम में जा सकता है ना सर, बिकॉज वो बहुत स्मूथ हाँ होता है मतलब। हाँ राइट, सी राइट, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारा कैप्सूलो स्लाइम है तो स्लाइम भी अगर है तब भी आपका यू हैव सम आउटर कवरिंग। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जिसका उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट, और कुछ ड्रग्स होंगे जो इसका उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो आप ये सोचो कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स है तो एडवांटेज तो मुझे मिलना ही है। अगर मेरे पास ग्लाइकोकैलिक्स है तो मुझे एडवांटेज तो वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। कितने डिग्री का मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ड्रग वहां पे यूज कर रहे हो, राइट। हाँ, कैप्सूल के लिए मैं श्योरली कह सकता हूँ कि कैप्सूल के लिए आपको लाइक ज्यादा हेवी डोज लेना पड़ेगा सो दैट यू कैन पेनिट्रेट द बैक्टीरिया, और या फिर आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा उसे मारने का, राइट। स्लाइम मोल्ड के लिए कंपैरेटिवली इजी होता है, बट स्टिल अगर आपके पास आउटर कवरिंग है तो आपको एडवांटेज तो वहां पे मिलता ही है। यू विल हैव सम काइंड ऑफ एडवांटेज ओवर देयर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि एडवांटेज नहीं होगा, दैट यू विल हैव द एडवांटेज। पता चला महालक्ष्मी? यस सर। Then you have protection from the viruses as well. Now, when we say you have protection from the viruses, so what will be happening here now? There are some viruses which are known to infect the bacteria. कुछ आपके वायरसेस यहाँ पे होते हैं जिनका काम होता है कि आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। जैसे एक एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज, सो बैक्टीरियोफेज इज अ नेम ऑफ अ वायरस जो जनरली जाके आपके बैक्टीरिया को अटैक करता है। यार इतना नाम पे मत जाना, इट इज एक्चुअली अ वायरस। हाँ, यहाँ पे एक वायरस है और ये वायरस जाके बैक्टीरिया को अटैक करता है। लेकिन अगर आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है तो कई बार ये वायरस अंदर नहीं आ पाता। द वायरस इज नॉट एबल टू एंटर इनसाइड इफ यू हैव दिस आउटर कवरिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो इससे भी बचाने में आपका ग्लाइकोकैलिक्स आपके यहाँ पे करेगा मदद। देन पॉइंट नंबर 4, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं जो किसी बाहर के फॉरेन पार्टिकल को जाके तुरंत खा लेंगे। दे विल कम क्विकली एंड दे विल स्टार्ट एनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक आपका सेल होता है जिसका नाम होता है मैक्रोफेज। एक सेल होता है, आपने ये नाम सुना होगा 11th में, आपने चैप्टर 7 में या फिर पढ़ा होगा इसे एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर, या फिर आपने इसे पढ़ा होगा इन द चैप्टर 18 के अंदर बॉडी फ्लूइड के अंदर। सो यू हैव अ सेल कॉल्ड एज मैक्रोफेज। वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट, अमीबा जैसा। आपने देखा होगा ना अमीबा क्या करता है, ऐसे रिंग रिंग के आता है और फिर पूरा सा फूड पार्टिकल को पूरा एनगल्फ कर लेता है। वो अपना सूडोपोडिया बना के आएगा, चल के आएगा और पूरा उसे फिर एनगल्फ कर लेगा। तो उसी तरीके से जो आपके मैक्रोफेज होते हैं ना, ये जाके कोई से भी फॉरेन पार्टिकल को जाके खा लेते हैं आपकी बॉडी के अंदर। बट अगर आपके बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स है तो कई बार वो अपने आप को बचा पाता है ऐसे सेल से। सो दीज आर माय फैगोसाइट्स। तो ये जो मेरे सेल्स है ना जो आके इसको खा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय फैगोसाइटोसिस। जो खाने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और ये वो मेरे सेल्स हैं। तो इन सेल्स से बचने के लिए भी आपका ग्लाइकोकैलिक्स आपके यहाँ पे मदद करेगा। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू नो। प्रिवेंशन फ्रॉम द डेसिकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द ड्रग्स, protection from the virus, and protection from the phagocytes. So these are the 4 things we'll get to see in the macrophages. So macrophage can, like, these are the 4 things we'll see as the advantage of the glycocalyx. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये 4 पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देन याद रखना बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, तो यहाँ पे हमने देख लिया ग्लाइकोलिस। लेट्स मूव ऑन टू द सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं ना, तो सेल वॉल, आई टेल यू वन थिंग डायरेक्टली। सी, बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज्यादा है। लाइक यू हैव लाइक मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द प्लेनेट। बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, उन्हें आप 2 कैटेगरी में आप बांट दो। और जो कैटेगरी जो आपकी यहाँ पे है वो है आपके यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। ये 2 कैटेगरीज आपके यहाँ पे होती है, एंड दिस इज अ कैटेगरी व्हिच यू हैव टू नो। जस्ट गिव मी अ मिनट।
So you will have these two categories of bacteria over here, gram negative and gram positive bacteria. अब इनमें फर्क क्या होता है? ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फर्क बेसिकली होता है सेल वॉल का. सो दे आर डिफर इन देयर सेल वॉल. They are going to differ in their wall. So they have a difference in the cell wall. They have a difference in cell wall. तो इनके सेल वॉल के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा. अब जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सेल वॉल के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, सो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इनकी सेल वॉल यहाँ पे अलग होगी. सो ग्राम पॉजिटिव की अलग होगी, ग्राम नेगेटिव की अलग होगी, राइट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव डिवाइडेड द बैक्टीरिया इनटू टू कैटेगरीज. उसके बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे आपका रखा हुआ है. अब हम उसको समझते हैं ना. यहाँ पे करते क्या है ना, देयर इज समथिंग दैट ग्राम स्टेनिंग. अब इसको हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे नहीं, ये सिर्फ आपको यहाँ पे आप प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अपने एंड से आप पढ़ सकते हो. बट एक तरीका होता है जिसके वजह से होता क्या है कि आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे दे विल अटेंड द कलर, दे विल गेट द पर्पल कलर. सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो आपके होते हैं यहाँ पे रिटेन करते कलर, और जो कलर ये लोग यहाँ पे रिटेन देंगे दैट्स माय पर्पल कलर, राइट. और जो मेरे यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे होते हैं दे आर गोइंग टू रिटेन द पिंक कलर और दे आर गोइंग टू रिमेन द कलरलेस. या फिर ये पिंक कलर लेंगे और एल्स दे आर गोइंग टू रिमेन द कलरलेस, या फिर आप करेंगे यहाँ पे आपके एज अ कलरलेस, राइट. तो इतनी बात याद रखना कि ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसीजर है. जब मैं उसे प्रोसीजर को रन करता हूँ, जो जितने मेरे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर कलर आ जाएगा, दे विल बिकम पर्पल. एंड व्हिच आर द बैक्टीरिया व्हिच आर ग्राम नेगेटिव, दे विल हैव द पिंक कलरेशन और दे विल हैव अ नो कलर, राइट. नाउ वी हैव टू सी कि ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, इनके अंदर ऐसा क्या अलग है. लाइक व्हाट इज द डिफरेंस ओवर देयर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल कि यू हैव अ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव. आप ये दो ग्रुप कैसे बन पा रहे हैं, सो वो हम यहाँ पे देखते हैं, राइट. बेसिक चीज आप यहाँ पे जानते हो, सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट, ये बात आप जानते हो. हाँ, ग्राम पॉजिटिव विल हैव अ सिंगल लेयर ऑफ वॉल. सिंगल लेयर ऑफ वॉल विल सी इन माय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव विल हैव डबल लेयर ऑफ वॉल. ये बात भूलना मत. ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपको मिलती है सिंगल वॉल, सिंगल सेल वॉल, और ग्राम नेगेटिव के अंदर आपको मिलती है डबल लेयर्ड सेल वॉल. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. बाकी तो आप जानते हो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय पेप्टोग्लाइकन एंड म्यूरिन. अब पेप्टोग्लाइकन को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे या डिटेल में स्टडी करोगे, समझो मैं शिखा के हाथ में एक बैक्टीरिया देता हूँ और वो सेल वॉल को स्टडी करती है, और जब वो सेल वॉल को डिटेल में पढ़ेगी ना, डिटेल में जब देखेगी उसे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसे कुछ दिखेगा वहां पे कि पेप्टोग्लाइकन के अंदर आपको दो चीजें मिलती है. शी विल बी एबल टू सी टू थिंग्स, एन एसिटाइल and N-acetyl muramic acid. ये दो चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए आपके सेल वॉल के अंदर. ये टर्म्स याद रखना, ये टर्म्स ऑलरेडी नीट के अंदर पूछे जा चुके हैं. सो पेप्टोग्लाइकन को जब आप थोड़ा और डिटेल में देखते हो ना, अंदर क्या लगा हुआ है वहां पे, देन यू विल गेट टू सी दिस टू थिंग्स. पेप्टोग्लाइकन इज मेड ऑफ दिस टू थिंग्स, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. ये दो चीजों से वो बना हुआ होता है, ठीक है. तो एक बात यहाँ पे ये याद रखो. दूसरी चीज याद रखना कि आपके ग्राम पॉजिटिव के अंदर विल हैव अ सिंगल लेयर ऑफ वॉल, ग्राम नेगेटिव विल हैव द टू लेयर्स ऑफ वॉल. अब इसको हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं. लेट्स सी दिस पिक्चर. यहाँ पे आपको पिक्चर में क्लियर कट दिख रहा है कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल. सो नाउ यू कैन सी दे हैव अ सिंगल लेयर ऑफ वॉल ओवर हियर, राइट. अब ये जो ऑरेंज और Yes, ग्रीन sir. यहाँ पे, हाँ हाँ बेटा बोलो. अच्छा, ओके. सो यू हैव दिस सिंगल लेयर ऑफ वॉल ओवर हियर. अब ये जो मेरा पूरा स्ट्रक्चर है दैट यू कैन सी इट्स अ पेप्टोग्लाइकन. आप थोड़ा देखो ध्यान से, जो ग्रीन वाला है दैट इज माय N-acetyl muramic acid, जो यहाँ पे NAM करके लिखा हुआ है NAM, दैट्स माय N-acetyl muramic acid. और जो NAG करके यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज माय N-acetyl glucosamine. तो ये दो चीजों से बना होता है मेरे यहाँ पे, दो चीजों को मिला के आपका बनता है आपका यहाँ पे पेप्टोग्लाइकन, राइट. नाउ लेट्स सी ओवर हियर. तो याद रखना ये मेरा ग्राम पॉजिटिव, इट विल हैव सिंगल लेयर वॉल. उसमें वॉल होगी आपकी सिंगल लेयर की, राइट. दूसरी चीज, इट विल हैव लेस अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट. ये बात याद रखना, इट विल हैव लेस लिपिड कंटेंट. ये चीज कभी भूलना मत कि लिपिड का अमाउंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफी कम रहेगा.
Then you have the third point, they will have high amount of peptidoglycan. It will have high पेप्टिडोग्लाइकन. ये चीज हमेशा याद रखना, ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर यू विल हैव अ लेस लिपिड कंटेंट, पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगा और ये सिंगल लेयर की वॉल यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ माय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब उसी तरीके से अगर आप ग्राम नेगेटिव को अगर आप यहाँ पे देखोगे, याद रखना जैसे आपने इसको यहाँ पे देखा क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है यू हैव अ 2 वॉल्स, लाइक वॉल्स के यू हैव अ 2 लेयर्स. एक पहली मेरी लेयर यहाँ पे आ जाती है और दूसरी लेयर मेरी यहाँ पे आ जाती है. सो 2 लेयर मुझे यहाँ पे मेरे वॉल के यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाता है. राइट, सो 2 लेयर्स आई गेट टू सी अबाउट माय वॉल. सो 2 लेयर मुझे यहाँ पे मिल गया. सो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे यू हैव 2 लेयर्स, you have 2 layers which will be seen over here, right? सेकंड पॉइंट याद रखना, ग्राम नेगेटिव में लिपिड का कंटेंट ज्यादा रहता है. ग्राम नेगेटिव के अंदर आपका लिपिड का कंटेंट जो यहाँ पे रहेगा वो थोड़ा आपका यहाँ पे ज्यादा रहेगा. सो विल हैव अ हाई लिपिड, विल हैव अ हाई लिपिड कंटेंट. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो लिपिड का कंटेंट आपका यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे काफी ज्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको लिपिड मिलता है. देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिपोपॉलीसेकेराइड, आप बस इतना याद रखना कि यहाँ पे लिपिड कंटेंट काफी अच्छा होता है, ज्यादा होता है. राइट, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट होता है लो, सो विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ, विल हैव अ लेस पेप्टिडोग्लाइकन. ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग हमेशा. विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ लिपिड ओवर हियर. इतने पॉइंट्स याद रखना अबाउट माय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट्स इनफ फॉर यू. आपका क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं आएगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट विल गेट टू सी द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ना पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो ये देख लिया हमने यहाँ पे इनकी सेल वॉल. राइट, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब देखते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा यहाँ पे. ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करने के पहले मुझे बता दो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइए आप लोग. महालक्ष्मी, शिखा एंड नो सर. जानवी, जानवी बताइए, बोलिए. No, sir. सर डबल लेयर हाँ, सेल वॉल का. वापस बोलना बेटा. सर डबल लेयर सेल वॉल का होगा. सेल वॉल का, ये सेल वॉल का, यस 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 यस, सेल वॉल का, मेम्ब्रेन का नहीं. मेम्ब्रेन तो सबकी सेम रहती है, उसकी हमारी सबकी सेम रहती है. सेल वॉल विल हैव 2 लेयर्स. ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सेल वॉल, हम ऊपर का जो पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं दैट्स अ सेल वॉल. देखो ये तो हमारी मेम्ब्रेन है यहाँ पे, दैट्स अ सेल मेम्ब्रेन. तो उसके ऊपर जो मेरे जो मिलेगा यहाँ पे दैट्स माय सेल वॉल. तो सेल वॉल की 2 लेयर मुझे यहाँ पे मिलेगी. यहाँ पे 2 लेयर्स ऑफ सेल वॉल ओवर है. राइट, ओके सर. काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है, एनीथिंग एल्स जानवी? आई गेस नहीं. ओके, चलो ठीक है ठीक है. Now let's start with the plasma membrane. इसकी कहानी हम देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या है. Plasma membrane, now all of you know that plasma membrane is mainly made up of my phospholipid and protein. 2 चीजों से बना हुआ होता है यहाँ पे हमारा. Just wait a minute, I have to like, maybe because of the sweat this is happening. Made up of 2 things, phospholipid and protein. ये 2 चीजों से बना हुआ आपको यहाँ पे आपका मिल जाता है. राइट, सो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना हुआ आपको मिलेगा आपका यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द मेन कंटेंट यू विल फाइंड. इसके अलावा भी और चीजें होती है बट ये आपका मेन कंटेंट आपको पहले तो आपको इसके अंदर यहाँ पे याद रखना है. राइट, नाउ दिस इज वन मोर थिंग यू हैव टू नो कि यहाँ पे इन्होंने एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है. यू नो इट्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, 2 लेयर आपको यहाँ पे मिलती है. राइट, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है इन लोगों ने. यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है, यू हैव अ हेड पार्ट. आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आपका एक हेड पार्ट है यहाँ पे एंड यू हैव अ टेल पार्ट. राइट, मैं आपको यहाँ पे मैं भी अपने एंड से पिक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको ऐसा हो तो. इफ दिस इज माय फॉस्फोलिपिड, यू विल हैव अ हेड पार्ट, यू विल हैव अ टेल पार्ट. अब हेड पार्ट जो आपका यहाँ पे होता है, हेड पार्ट जो आपका होता है याद रखना ये आपका होता है पोलर. पोलर मतलब ये पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. इट कैन इंटरेक्ट विद द वाटर, इट कैन इंटरेक्ट विद द एक्वेशियस सॉल्यूशन. तो याद रखना है जो हेड पार्ट होता है मेरा यहाँ पे ये आपका बाहर के साइड होगा और ये हमेशा एक्वेशियस सॉल्यूशन और वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ हाइड्रोफिलिक हेड. इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइड्रोफिलिक हेड. राइट, ऑन द अदर हैंड जो मेरा टेल वाला जो मेरा यहाँ पे पार्ट है, टेल वाला पार्ट जो मेरा यहाँ पे होता है ये पानी के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता.
इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ नॉन पोलर, जो टेल वाला पार्ट मेरा यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी नॉन पोलर, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद द वाटर, और ये सेंटर में होता है। देखो आप यहाँ पे पिक्चर को अगर आप देखोगे ध्यान से, ये सारा आपका टेल वाला पार्ट आपका सेंटर में, ये ना ही आउटर साइड में ना ही इनर साइड पे, और ये क्योंकि पानी के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता, इसलिए हम इसे बोलते हैं एज अ हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये बात प्लीज याद रखना कि हेड पार्ट कहाँ पे होता है, टेल पार्ट कहाँ पे होता है, दैट्स वेरी सिंपल थिंग, राइट। और काफी कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम आगे जाके देखते हैं। So, biochemical investigation clearly revealed that cell membrane possess lipid, protein and carbohydrate. Cell membrane के अंदर आपको लिपिड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल जाएगा, right? The ratio of protein and lipid will vary from cell to cell. ये cell to cell आपका ये vary कर जाता है, प्रोटीन और लिपिड का concentration. Human erythrocyte, human RBC में जब आप देखते हो ना, तो आपको अराउंड 52% मिलता है प्रोटीन और 40% आपको मिलता है लिपिड। ये भी याद रखना, ये एनसीईआरटी की वैल्यू है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है। सो 52% प्रोटीन होता है और 40% आपके यहाँ पे रहता है लिपिड, राइट। देन स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स। मैंने आपको पहले बताया था, हमारा यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन सेम ही रहती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता उन दोनों के अंदर, ठीक है। चलिए, अब जब डिस्कवर किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लोगों को ये जानना काफी जरूरी था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। और वो स्ट्रक्चर काफी लोगों ने अपना ट्राई किया उसका स्ट्रक्चर बताने का, डिफाइन करने का, बट जो सबसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया था जिसका मॉडल, वो थे आपके सिंगर एंड निकोलसन। सो सिंगर एंड निकोलसन वर द इंडिविजुअल्स हु actually gave the real structure of the plasma membrane, right, which was a double membrane, phospholipid double membrane structure with protein inside attached, right. तो ये आपको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल व्हिच वाज गिवन बाय देम, ओके, अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सो उन्होंने क्या बोला कि आपकी डबल मेम्ब्रेन लेयर है, और जो डबल मेम्ब्रेन की जो लेयर है ये बनी हुई आपके फॉस्फोलिपिड्स है, और उनके बीच में वहां पे आइसबर्ग की तरह लगे हुए आपके वहां पे प्रोटीन, लाइक आइसबर्ग द प्रोटीन आर बीन अटैच्ड ओवर देयर। तो ये चीज उन्हें वहां पे देखी थी। लेट्स सी ओवर हियर। तो यहाँ पे हम पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलर, और वहां पे कई सारे प्रोटीन वहां पे लगे हुए हैं। और बढ़िया पिक्चर में हम यहाँ पे देखते हैं, ये पिक्चर में हम देखते हैं यहाँ पे, तो यू कैन वेरी क्लियरली सी द फॉस्फोलिपिड बायलर आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट। अब यहाँ पे कुछ जो प्रोटीन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये जो बाहर के साइड पे जो प्रोटीन यहाँ पे लगे हुए हैं, दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एज माय पेरिफेरल प्रोटीन। इनको दो नाम हम दे सकते हैं, इधर दे कैन कॉल एज माय पेरिफेरल प्रोटीन, और यू कैन कॉल हिम एज अ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो याद रखना, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इधर या फिर बाहर के साइड होगा या फिर अंदर के साइड पे होगा, ठीक है, या फिर एकदम बाहर के साइड या फिर अंदर के साइड। जैसे ये एक हो गया, देन ये भी आपका हो गया, दिस इज आल्सो बेसिकली एग्जांपल ऑफ माय पेरिफेरल प्रोटीन। ये हमारा पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जांपल बन जाता है, राइट। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी यू कैन सी दिस ग्लोबुलर प्रोटीन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन लोगों ने यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन, इट इज अ पेरिफेरल प्रोटीन, बाहर के साइड पे ये सिर्फ, राइट। ये भी देख लो आपका यहाँ पे पूरा अंदर के साइड पे, ओके। बट जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे दूसरे टाइप के प्रोटीन की, लाइक इंटीग्रल प्रोटीन, दिस वन, सो व्हेन वी सी टॉक अबाउट दिस प्रोटीन, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। इसको आप इधर इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हो, या फिर आप इसको इवन कह सकते हो एज अ इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इस प्रोटीन की मदद से यू कैन ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन, इस प्रोटीन की मदद से मैं एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकता हूँ, कुछ बाहर से अंदर लाना हो, अंदर से बाहर भेजना हो, ये सब मैं कर सकता हूँ यूजिंग माय इंटीग्रल प्रोटीन। सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट यू हैव अ पेरिफेरल प्रोटीन ऑन द आउटर साइड और ऑन द इनर साइड, लेकिन जो मेरा इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो पूरा बाईपास कर रहा होता है। आप देखो ना, ये पूरा की पूरा आपका मेम्ब्रेन में बाईपास कर रहा है, पूरा बीच में से पास हो रहा है, और इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एज वेल। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिस इज माय इंटीग्रल प्रोटीन, ये वाला जो है यहाँ पे, राइट। एक और यहाँ पे बना हुआ है आपका, दैट इज आल्सो इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके दो टाइप के प्रोटीन आपको अच्छे खासे आपके मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। यू विल गेट टू सी दिस काइंड ऑफ प्रोटीन। सो फॉस्फोलिपिड बायलर आपको मिलते हैं यहाँ पे। प्रोटीन्स आपको मिलेंगे आपके दो टाइप के, यू विल हैव अ इंटीग्रल प्रोटीन एंड यू विल आल्सो हैव अ पेरिफेरल प्रोटीन। ये दो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, right, and they do have a function, याद रखना, they do have a function, they have multiple roles over there, right। जैसे मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बढ़िया फंक्शन होता है। कई पेरिफेरल प्रोटीन का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, बाहर से कोई अगर सिग्नल आ रहा है तो उसे वो लोग रिसीव करते हैं, सो दैट काइंड ऑफ रोल दे डू, ठीक है। पहले ये बताओ यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है,
Shikha, Janvi, Yes, and sir. Mahalakshmi. Yes, sir. All right. Mahalakshmi is there or not? She's gone. Yes, sir. Yes. All right. Okay. ठीक है. Now you have to understand two important things over here. एक है मेरा यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने, एंड यू हैव समथिंग लाइक अ ग्लाइकोप्रोटीन. टर्म बड़ा ही सिंपल है. ग्लाइको मतलब शुगर. अगर मेरा शुगर मॉलिक्यूल लगा है लिपिड के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा है मेरा लिपिड के ऊपर. इट इज अटैच्ड टू द लिपिड एक्चुअली ना. सो दैट कैन बी कॉल्ड एज माय ग्लाइकोलिपिड. अगर मेरा शुगर मॉलिक्यूल अटैच है मेरा प्रोटीन के ऊपर, then that over here will be called as my Glycoprotein. बहुत ही सिंपल टर्म है समझने वाला. आपको इसका रोल समझना है. टर्म तो बड़ा सिंपल है. You have a glycolipid and you have a glycoprotein. You have to know the roles over here. You can see the picture over here as well. You can see the यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है अगर मेरा प्रोटीन के ऊपर, that becomes my glycoprotein. This becomes my glycoprotein, right? अगर मेरा कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है मेरे कार्बोहाइड्रेट अगर मेरा लगा हुआ है लिपिड के ऊपर, then that becomes my glycolipid. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. नाउ द क्वेश्चन इज कि इनका काम क्या होता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रोल ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, बिकॉज़ यू फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दैट, राइट. तो याद रखना दो चीज. ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के दो काम होते हैं. एक होता है आपका सेल रिकॉग्नाइजेशन. सेल रिकॉग्नाइजेशन. रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है, यू नो दैट ना. रिकॉग्नाइज करना मतलब समझो मैं भीड़ से जा रहा हूँ, मैंने देख लिया कि अरे हमारा स्टूडेंट अभी क्लास में जाना चाहिए था, बाहर घूम रहा है, Yes, sir. तो मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया आपको, राइट. सो दैट्स अ रिकॉग्नाइजेशन. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन विद इन द बॉडी. आपके सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें करना चाहिए होता है. आई गिव यू द रियल एग्जांपल ओवर हियर. अज्यूम करो कि आपका एक सेल है, जैसे कि आपका हो गया मैक्रोफेज. मैक्रोफेज आपका यहाँ पे सेल हो गया, जिसका काम होता है कि कोई भी अगर फॉरेन बॉडी या फॉरेन सेल आया तो उसे वो पकड़ के खा जाएगा. चाहे वो फॉरेन बॉडी हो या कोई फॉरेन सेल अगर बॉडी के अंदर आता है तो उसको पकड़ के वो खा जाएगा, राइट. अगर ये मैक्रोफेज जानना चाहता है कि कौन सा सेल खुद का है बॉडी का, खुद का बाहर का है, वो करने के लिए वो यूज करेगा यहाँ पे अपना ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. तो बेसिकली समझो कि मेरा यहाँ पे ये मैक्रोफेज है. दिस इज माय मैक्रोफेज, राइट. ये एक सेल के सामने आता है, ये घूम रहा है, ये किसी को ढूंढ रहा है, समझो ये किसी सेल को ढूंढ रहा है खाने के लिए, और ये सामने आता है आपके आरबीसी के. इट कम्स अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ योर आरबीसी. आरबीसी से सामने आ जाता है. अब जैसे आरबीसी के सामने आता है तो उसे पता चलता है कि आरबीसी है, ये तो हमारे खुद का सेल है, इसे थोड़ी हम मारेंगे. क्यों पता चलता है उसे? बिकॉज ऑफ माई ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. इसके सरफेस के ऊपर आप बोलेंगे आपके ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, और इसके वजह से दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज एनी काइंड ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल. तो अपने आप पहचान पाता है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो मैक्रोफेज है उसने क्या किया यहाँ पे, उसने किया यहाँ पे अपना सेल रिकॉग्नाइजेशन. उसने यहाँ पे किया अपना सेल को रिकॉग्नाइज, और जैसे उसने उसे रिकॉग्नाइज किया कि ये तो हमारा खुद का सेल है, तो उसे कुछ करेगा नहीं, राइट. सो प्लीज अंडरस्टैंड, सेल रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए आपका ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपकी यहाँ पे बड़ी मदद करते हैं. दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी हेल्पिंग इन द इंटरेक्शन ओवर देयर. ठीक है. तो ये बात यहाँ पे रखना. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इम्यून सिस्टम का भी. बताइए बेटा, बताइए महालक्ष्मी बताइए. सर अभी आपने बताया कि वो खुद का मतलब इस बॉडी का सेल नहीं खाता सर. हाँ, व्हाट पर हैपेंड. मतलब आगे वालों का सेल खाता है ना सर, मतलब डिफरेंट हाँ. पर्सन. हाँ, अगर समझो अगर कोई बाहर का सेल आता है बॉडी के अंदर, बैटरी आता है, जैसे ही वो उसे मिला, उसने देखा, वो रिकॉग्नाइज करेगा, वो देखेगा उसे कि उसे पता चल जाएगा कि यार ये तो बाहर का है. वो करने के लिए इट विल हैव अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ऑन द सेल सरफेस. जैसे उसे पता चला कि ये बाहर का है, वो अपना काम चालू करेगा. इट विल स्टार्ट एनगल्फिंग दैट सेल. समझ रहे हो? वो सेल इसको हार्म करेगा क्या सर, मतलब माइक्रोफेज को? किसको हार्म? आप क्या कह रहे हो कि इसको हार्म करेगा नहीं करेगा? आरबीसी को? हाँ नो सर, आरबीसी माइक्रोफेज को कुछ भी मतलब हार्म और एल्स कुछ भी नहीं करेगा ना सर. तो ना ये ना, क्यों आएगा सर? एक सेकंड हाँ मैं बताता हूँ. अच्छा ठीक है. देखो, मैक्रोफेज जो है ना बेटा, दे आर लाइक अ पुलिस ऑफ द योर बॉडी. दे आर लाइक पुलिस ऑफ द बॉडी. दे कीप ऑन डू द पेट्रोलिंग, राइट. इनके पास वो हथियार है हार्म करने के लिए किसी को भी. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बाहर से आता है
तो उसको मार मार के वहां पे खत्म करेंगे, ऐसा सोचो। तो अगर खुद का सेल है तो एक बार बस चेक करेंगे, लाइक दे विल, इफ दे कम अक्रॉस द सेल, देयर ओन सेल, दे वोंट डू एनीथिंग। वो सोचे उसके पास में फिर वहां से निकल जाएंगे। व्हाई दे हैवंट डन एनीथिंग? बिकॉज़ दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट इट्स ओन सेल। Yes, sir. दे आर डूइंग पेट्रोलिंग ऑल द टाइम। देखो क्या नाम है, महालक्ष्मी एंड ऑल द स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि कई बार अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दे तो आपको देखना पड़ता है कि उसका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। Yes, अगर sir. आपने बिना उसको मैच करे अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो ये सारे सेल्स दौड़ के आएंगे, और ऐसे बहुत सारे टाइप के सेल दौड़ के आएंगे और वो सेल्स को मारना चालू करेंगे। क्यों मारना चालू करें? क्योंकि वो बाहर का है। समझ रहे हो आप? राइट। सो दे Yes, आर sir. टू डू ऑल दोस थिंग्स, दे आर योर इम्यून सेल्स। राइट। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट it also helps in cell to cell interaction. Cell to cell interaction. So glycoprotein and glycolipid also helps in the cell to cell interaction. तो दो सेल को अगर जब इंटरेक्ट करना होता है ना, या दो सेल जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो इंटरेक्ट करने के लिए भी आपका ये मदद करता है। समझो अगर एक सेल को दूसरे सेल को कोई सिग्नल देना है, एक सेल को दूसरे सेल को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो करने के लिए भी आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आपके यहाँ पे हेल्प करता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक है आपका यहाँ पे सेल टू सेल इंटरेक्शन, और दूसरा आपका यहाँ पे आपका सेल रिकॉग्नाइजेशन। ये दो काम करने के लिए आपका ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपकी बड़ी मदद करेंगे। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। आई होप इसको लेके कोई दिक्कत हो Yes, तो बता sir. दो। इफ देयर इज समथिंग नॉट क्लियर देन बोलो कि नहीं आ रहा सर समझ में, मैं रिपीट कर दूंगा। हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग नहीं पता चला। राइट, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। Then you have the last thing, that is my cholesterol. ये हमने यहाँ पे देख लिया। Now you have a last thing in the membrane you get to see is the cholesterol. Cholesterol के बारे में याद रखना, it provides the stiffness to the membrane. It provides the stiffness to the membrane. मेम्ब्रेन को थोड़ा वो स्टिफ करता है। आपकी मेम्ब्रेन काफी फ्लूइड जैसी होती है, इट्स अ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, राइट। सो उसको थोड़ा स्टिफनेस देता है आपके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, राइट। दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी कोलेस्ट्रॉल इज गोइंग टू डू। सो याद रखना, कोलेस्ट्रॉल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट्स अ कोलेस्ट्रॉल ओवर हियर, एंड इसका क्या होता है, टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ स्टिफनेस टू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को थोड़ा स्टिफनेस वहां पे वो प्रोवाइड करेगा, राइट। क्योंकि अगर ज्यादा मेम्ब्रेन फ्लूइड वाली हो गई देन वो काम नहीं करती सही से, right? It won't work properly. So you need to have some amount of like stability and stiffness जो आपको यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आपको प्रोवाइड करता है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। That is one thing you have to know, right? क्या यहाँ पे रूल्स लिखे हुए? Provides the selective permeable. So याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा आपकी होती है selectively permeable. जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही अंदर आती हैं, और जो काम की चीज नहीं है वो आपके अंदर नहीं आती। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ध्यान रखता है कि जो भी काम का है उसे अंदर ले, और जो काम का नहीं है उसे वो अंदर ना ले। That is what plasma membrane will take into account. So they are going to be selectively permeable. ये बात आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको कई सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको कई सारे यहाँ पे मिलेंगे प्रोटीन्स लगे हुए, यू नो दैट, एंड दीज प्रोटीन्स आर द साइट ऑफ माय बायोकेमिकल रिएक्शन। एक बात याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कई सारे एंजाइम्स लगे हुए होते हैं। प्रोटीन मतलब एंजाइम्स, कई सारे प्रोटीन्स होते हैं व्हिच वर्क्स एज एंजाइम, राइट। और वो एंजाइम्स जो वहां पे लगे हुए होते हैं, दे आर नोन टू कैरी आउट द बायोकेमिकल रिएक्शन। वो आप पे आपको बायोकेमिकल रिएक्शन करके देते हैं। देन थर्ड पॉइंट, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट। मैंने आपको पहले बताया था कि मेम्ब्रेन के अंदर जो चैनल लगे होते हैं उससे आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो अंदर बाहर। सो दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन। देन वन मोर पॉइंट, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। मेम्ब्रेन आपकी मदद करती है आपके एक्सटर्नल सिग्नल्स को रिस्पॉन्स करने के लिए। यहाँ पे कई सारे प्रोटीन होते हैं जो बाहर के सिग्नल को लेते हैं और सेल के अंदर पहुंचाते हैं। So they response to the external signal. इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आपको यहाँ पे आ सकता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जब किसी साइट पे जब जाते हैं ना, तो वो जाके अटैच करते अपने आप को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के ऊपर, जो एक्चुअली उसका प्रोटीन होता है। मतलब वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाके इंटरेक्ट करते हैं। देन वहां से वो सिग्नल भेजा जाता है अंदर सेल के अंदर कि बाहर से कुछ आया है तो अपने को कुछ करना पड़ेगा। ओके, so they respond to the external signal. So that is something you have to know. These are like few rules I've just mentioned over here of my plasma membrane, right? अभी पिक्चर आपके सामने यहाँ पे है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा डायग्राम है, ये डायग्राम को मैं लेबल करता हूँ यहाँ पे एज अ बी, तो मुझे ये बताओ कि जो बी वाला जो मैंने लेबल करा हुआ यहाँ पे डायग्राम है, ये
सॉरी, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन है? बताओ मुझे हैंड रेस करके, इन बताइए जानवी। जानवी बोलिए, हैंड रेस हो गया आपका, बोलिए। जानवी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, इसलिए ट्राइंग टू अनम्यूट द माइक। हाँ जी बेटा बताइए महालक्ष्मी तब तक। सर इंट्रेंस इट इज माय इंट्रिंसिक प्रोटीन, बिल्कुल सही। दिस इज गोइंग टू बी माय इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। उसी तरह से आपका एक्सट्रिंसिक यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा, राइट। ये दोनों भी मेरे यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएंगे यहाँ पे, सो दैट शुड बी लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ राइट, या जानवी दैट्स ट्रू। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा दो मुझे। ओ ये क्वेश्चन, दिस आर बीन क्वेश्चन ऑलरेडी बीन कवर्ड। मैं चलो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन 2016 का यहाँ पे क्वेश्चन है। A complex of ribosome attached to single strand of RNA, एक राइबोसोम का जो कॉम्प्लेक्स है आपके सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए के साथ यहाँ पे अटैच है। सो इसको हम हाँ जी शिखा बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? पॉलीजोम। पॉलीजोम से। अब शिखा मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि पॉलीजोम्स बेसिकली ये बनाया क्यों है, इसका फायदा क्या है? सर प्रोटीन सिंथेसिस करने में। बिल्कुल सही, ये बनाने का रीजन ये होता है कि आप बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस आप यहाँ पे कर पाओ। यू कैन डू एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ओवर हियर, सो दैट इज व्हाई इट इज बीन मेड। ठीक है, लेट मी सी इफ आई हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला स्टेटमेंट है। ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लाइक वॉच इट केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें और हैंड रेज करना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे मेरा रॉन्ग है। शिखा ने हैंड रेज कर दिया, बाकी लोग भी फटाफट पड़ी है और हैंड रेज करिए। चलिए बहुत बढ़िया, सबने हैंड रेज कर दिया। तो बताइए महालक्ष्मी क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? सर आई थिंक ऑप्शन बी सर। वापस बोलना, ऑप्शन कौन सा? सर ऑप्शन बी। बी लग रहा है आपको? ठीक है, शिखा आपको क्या लग रहा है? यस सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एंड जानवी आपको? बी। जानवी को भी बी लग रहा है यहाँ पे। महालक्ष्मी मुझे यहाँ पे बताइए आप कि आप कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, तो आप मुझे बताइए पिलाय क्या करता है और फिमरिया क्या करता है आपके हिसाब से, बताइए। चलिए सब पिलाए मतलब एक सब्सटेंस को अटैच करने पर हेल्प करता है सर। -5 टू यू। नहीं ठीक है, वापस ट्राई करो। वेट सर ट्राई। नहीं याद आ रहा, अरे ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? शिखा बताओगे? यस सर। बोलो। सर फिम्ब्रे जो है वो बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है। राइट, फिमरिया आपका अटैच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और पिलाय? सर वो पिलाई वाला याद नहीं आ रहा। आपको भी -5, आपको भी पिलाई। जब टेस्ट होगे ना ये -5 में उसमें से निकाल लूंगा। सर Alright. अटैचमेंट में प्रोवाइड करता है टू द सबस्टेंस। हाँ हाँ, फिमरिया का आप बता रहे हो सही है कि अटैचमेंट में हेल्प करता है वो आपका टू द सबस्ट्रेटम, या जो से भी अटैच करना है उसे अटैच कर लाएगा। पिलाय क्या कर रहा है मुझे पिलाय बताओ। सर पिलाई सब्सटेंस से अटैचमेंट में मदद करता है ना? नहीं नहीं, वो फिमरिया करता है। आप भी, सर इवन जानवी बैक्टीरिया अदर सेल से अट्रैक्शन में मदद करता है। पहले लिख दें दो, जानवी के भी -5, महालक्ष्मी के भी। तब तक बताओ मुझे क्या। वो हाँ अटैच करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया से। हाँ, so पिलाय विल हेल्प, अब सुनो मेरी बात, पिलाय विल हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। वो अटैच करने में उन्हें मदद करेगा, जहां पे वो बनाता है कॉन्जुगेशन ब्रिज, याद करो अभी बताया था। और उस ब्रिज बनाने का फायदा ये होता है कि वो अपना डीएनए वहां पे एक्सचेंज करते हैं। सो दैट कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाने के लिए वो पिलाय आप वहां पे इस्तेमाल करोगे। फिमरे इज समथिंग जो बेसिकली आपका अटैच करने में हेल्प कर रहा है। आपके बैटर को अगर जमीन पे चिपक के बैठना हो या किसी के लंग्स पे चिपक के बैठना हो तो वो पकड़ने के लिए वहां पे वो हेल्प करेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स योर करेक्ट आंसर, राइट। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। देन ये वाला भी आप मुझे कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, हो जाएगा ये क्वेश्चन आपसे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 2 3 इन द नंबर एंड, ये उस क्रोमोसोम की बात करे या उस डीएनए की बात करे जो एक से ज्यादा होता है। अब एक से ज्यादा कौन सा होता है क्रोमोसोम, मुझे ये बताओ, बताओ जानवी।
तो प्लाज्मिड हाँ प्लाज्मिड बिल्कुल एक से ज्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे हमेशा, आपका प्लाज्मिड हमेशा आपका एक से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही। अब ये तो लगे लोग प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। लीजिए अपने 30 सेकंड्स लीजिए यहाँ पे एंड देन ट्राई टू टेल मी व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर। चलिए चलिए जल्दी। ओके शिखा का हो गया, बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है 3 बच्चे क्लास में, ऐसा नहीं कि आप बच सकते हो। बताइए शिखा बोलिए। सर ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू। शिखा यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन ए, ठीक है। महालक्ष्मी आपको क्या लग रहा है? महालक्ष्मी नॉट सेइंग एनीथिंग। इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। याद रखना प्लाज्मिड हमेशा आपका सर्कुलर होगा, कभी लीनियर नहीं होता। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे हट जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर सर्कुलर और लीनियर, ऐसा नहीं होता। इट इज ऑलवेज सर्कुलर, कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर विद इन द सेम सेल, नहीं ऐसा नहीं है। तो दैट इज नॉट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर, ठीक है। तो ये तुमने यहाँ पे देख लिया। इसका आंसर तो मैं ही दे सकता हूँ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। मेरा आंसर यहाँ पे आएगा बी। आपका क्या आंसर आ रहा है इसके अंदर, जल्दी बताओ। तो डी। सर मीजोजोम। Right. This is going to be the correct answer. ठीक है. All right. So that is something you will get to see in this thing, right? There are few questions. You can have a look at these questions later on. So next time जब हम लोग मिलेंगे ना, so we'll be starting with the cell wall. So basically हम लोग यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल और बाकी के ऑर्गेनल हम फटाफट वहाँ पे हमारा खत्म कर देंगे। अगर मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा तो प्लीज वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अपने एंड पे, एंड यू कैन आल्सो शेयर द आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन शेयर दैट विद मी, राइट? So please do that once I share the questions with you. So that is something we have done. So आज के प्रोकैरियोटिक सेल वाले पोर्शन में हमने बेसिकली हमने पढ़ा पूरा बैक्टीरिया के बारे में। We have seen the plasma membrane which is common in both the us and bacteria. Then we have seen the cell wall in bacteria. तो ये चीजें हमने आज कवर की है। NCERT में जितना भी आज हमने पढ़ा है वो एक बार पढ़ जाना। हमने देखो एक चीज याद रखना, we haven't covered the cell history. शॉन एंड शेल्डन ने क्या बनाया था, लाइक कौन सी थ्योरी आगे रखी थी, या वो रुडोल्फ वर्चॉय ने क्या डिस्कवर किया था। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ, राइट? तो हिस्ट्री वाला पार्ट आप खुद से एक बार पढ़ो और उसके बाद जितना भी आज हमने कवर किया एक बार उसे फटाफट रिवाइज कर लो, ओके? ताकि आपको इतनी चीजों पे ग्रिप आ जाए। एंड आई विल शेयर द क्वेश्चंस विद ऑल द बैचेस, सो प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चंस सो दैट यू कैन हैव अ मच मोर फर्म हैंड ऑन दैम, ठीक है? सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अब आप लोग बताइए कोई अगर आपका सवाल हो तो, कोई सवाल, कोई क्वेरी कुछ हो तो बताइए। हाँ जी शिखा बताइए। So what do you mean by double stranded DNA? ठीक है मैं बताता हूँ, एक सेकंड, I'll show you. Let me show you. कहाँ पे वो है? शिखा you have seen human DNA का पिक्चर कभी ना कभी? Yes sir. ह्यूमन DNA का पिक्चर कुछ ऐसा होता है, right? So you have a two strands, you have a double helical structure हो रहा है, so you have a two strands, right? इसे बोलते हैं हम यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो ह्यूमन डीएनए अगर आपने देखा होगा, सो इट इज आल्सो डबल स्ट्रैंडेड, और बीच में सारे आपके यहाँ पे बॉन्ड्स बने होते हैं। यू हैव योर लाइक, है ना? अब वही होता है डबल स्ट्रैंडेड। अब वही आपको मिलता है बैक्टीरिया के अंदर भी वो, लेकिन यहाँ पे आपका है लीनियर, इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के अंदर यही स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे हो जाता है आपका सर्कुलर, मतलब वन स्ट्रैंड या अनदर स्ट्रैंड। So that is my double stranded वाला स्टोरी, ठीक है? बाकी यहाँ पे वही बॉन्ड्स आप मिलेंगे यहाँ पे भी देखने के लिए। So that is what double stranded means, right? हमारा लीनियर है, उनका सर्कुलर है। बताइए जानवी, क्या है सवाल आपका? सो आपने टेट्रासाइक्लिन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के बारे में कुछ बोला था, वो रिपीट कर दीजिए ना। हाँ तो देखो यहाँ पे होता क्या है ना जानवी, आप को मैं ऐसा समझाता हूँ। अज्यूम करते ये मेरा बैक्टीरिया ये काफी खुशी से रह रहा है, राइट? ये बैक्टीरिया है और ये काफी हैप्पीली आपका ग्रो कर रहा है। अब याद रखना बैक्टीरिया के पास क्या होता है, प्लाज्मेट, और प्लाज्मेट के अंदर लगे होते हैं कुछ जीन्स, और उन जीन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब ये जो जीन्स आपके प्लाज्मेट में लगे होते हैं, इन जीन्स का फायदा क्या होता है? इन जीन्स का फायदा ये होता है कि ये एक्चुअली हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक सोल्यूशन में सर्वाइव करने के लिए।
ठीक है। तो अगर मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल बना के मैंने आपको दिया था कि समझो आपके पास एक प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन नाम का जीन वहां पे लगा हुआ है। अगर वहां पे वो जीन वहां पे लगा हुआ है तो ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में काफी आसानी से ग्रो कर पाएगा, खुश रह पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको फायदा मिल रहा है यहाँ पे। सो समझो ये बैक्टीरिया मेरे पेट में आ गया, मैं टेट्रासाइक्लिन लग के अगर टैबलेट्स ले रहा हूँ तो ये मरेगा ही नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसके पास वो जीन लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर उसके पास वो जीन लगा हुआ है तो खुश कौन है, फायदे में कौन है? ये बैक्टीरिया। देखो ये अभी भी यहाँ पे खुश लग रहा है। सो दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो आपके यहाँ पे होते हैं वो एक्चुअली हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को टू सर्वाइव इन द एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, राइट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो इसलिए होता क्या ना, आपको हमेशा नए नए एंटीबायोटिक्स बनाने पड़ते हैं। अब मैंने देख लिया कि ये जो मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे है इसको टेट्रासाइक्लिन तो मार नहीं पा रहा, सो आई हैव टू यूज ए डिफरेंट एंटीबायोटिक नाउ। मैं कोई दूसरा एंटीबायोटिक सॉल्यूशन अब मैं खाना चालू करूंगा या टैबलेट लेना चालू करूंगा। सो आई विल यूज सम अदर एंटीबायोटिक लाइक योर एम्फिसिलिन, राइट। मैं एम्फिसिलिन यहाँ पे यूज करूंगा। या पता है वो पेनिसिलिन नाम का भी एक होता है एंटीबायोटिक जो आपने पढ़ा होगा, जो बहुत फेमस है, right? So you can use any of the antibiotics and you can then try to kill those bacteria. So first of all, जानी ये समझ आ रहा है आपको मेरी बात? आपको ये पता चले कि इसका फायदा क्या है बैक्टीरिया को, ये बात आपको समझ आ रही है? हाँ सर, आ गया। ठीक है, बताइए महालक्ष्मी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर एंटीबायोटिक खाने पर इफेक्ट नहीं होगा ना सर, तो फिर क्यों खाएंगे सर? वापस कुछ बोलना। मतलब सर आपने बोला कि कुछ बैक्टीरिया को लाइक एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेने पर भी इफेक्ट नहीं होगा सर, हाँ, फिर भी क्यों खाएंगे सर एंटीबायोटिक से? अच्छा देखो 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 महालक्ष्मी मैं तुम्हें समझाता हूँ, राइट। अज्यूम करते हैं कि मैं बीमार हुआ, मुझे लाइक बीमार हुआ है, सर्दी खांसी है, लाइक बुखार आ रहा है एंड आई एम फीलिंग अपसेट, सब कुछ सही नहीं लग रहा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, महालक्ष्मी, हमारे घर पे जो टैबलेट्स है वो खा लेते हैं, राइट। समटाइम वी हैव लाइक बेसिक एंटीबायोटिक्स हमारे पास होती है, हम कहते हैं चलिए खा लेते हैं, अपने आप को ठीक हो जाएगा, है ना। अब जब हम वो टैबलेट्स खा रहे हैं एंटीबायोटिक वाली, तो क्या हो रहा है कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, समझो मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा। सो दैट मीन्स व्हाट, कि वो जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो सही नहीं है मेरे बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। और शायद उसका रीजन ये हो सकता है कि बैक्टीरिया के पास उसका लाइक जीन है प्लाज्मिड के अंदर, तो इसलिए वो मर नहीं रहा वहां पे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आई विल गो टू अ डॉक्टर विल रन सर्टेन टेस्ट। अब डॉक्टर जब टेस्ट रन करता है तो उसे रियलाइज होता है कि नहीं यार, इसके अंदर तो सैल्मोनेला टाइफी होगा, क्योंकि मुझे सिम्टम्स कुछ ऐसे लग रहे हैं। सो नाउ डॉक्टर विल गिव यू अ प्रिसाइज एंटीबायोटिक, और को प्रिसाइज एंटीबायोटिक मुझे देगा जिसकी मदद से मुझे रिलीफ मिलेगा, जिसकी वजह से मेरा बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है मेरे बॉडी में कम होगा। सो दैट इज वाई जब तुम खा रहे हो और जब बैक्टीरिया की डेथ नहीं हो रही तो तुम्हें थोड़ी मालूम है कि बैक्टीरिया कौन सा है या तुम जो खा रहे हो वो इफेक्टिव है या नहीं। यू लेटर रियलाइज ना, आफ्टर अ वीक यू रियलाइज कि यार रिलीफ नहीं मिल रहा मुझे, देन यू हैव टू गो फॉर अ प्रिस्क्रिप्शन विच विल टारगेट योर पर्टिकुलर बैक्टीरिया विच इज देयर इनसाइड योर बॉडी, तब जाके आप फिर उसे खत्म कर सकते हो। समझ आई मेरी बात महालक्ष्मी? यस, मतलब सभी बैक्टीरिया को एक जीन होता है क्या सर, मतलब उसमें एंटीबायोटिक? हाँ, बैक्टीरिया के पास रहते हैं, बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड में ये जीन्स रहते हैं, राइट। इसलिए आपको अलग सभी अलग बैक्टीरिया सर? सभी बैक्टीरिया, यस। बेसिकली आई टेल यू समथिंग, बैक्टीरिया जो मेनली किसी दूसरे के बॉडी में जाके रहते हैं ना, उनमें अंदर आपको ये जीन ज्यादा मिलते हैं। जो बैक्टीरिया सॉइल में ग्रो कर रहा है ना, या जो बैक्टीरिया किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसमें भी आपको जीन्स मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें एंटीबायोटिक वाले जीन आपको बहुत कम मिलेंगे। बिकॉज व्हाट विल बी हैपनिंग, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं होगा ना। अगर एक बैक्टीरिया है जिसका पूरी जिंदगी उसे लाइक किसी पेड़ के आसपास ही गुजारना होता है, देन you might not have those you will have a genes but in a less number, they are not very active, right? But generally bacteria are known to have antibiotic resistant genes, okay, जो उनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए, राइट। ठीक है, ऑलराइट देन, चलो आई गेस इतने ही थे आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। I hope all of you have my number, by the way, so that you can reach out to me if you have any kind of concerns. So I guess that's with all of you. Okay. All right then. So that's it from my end. Now, if you have any kind of queries, you can. I think your queries have been resolved.